Done? Okay, thank you. Good morning, everyone. My name is Shivani Tyagi, your current affair teacher, and this is a beautiful morning to start with today's current affair. And I just want to tell you in the beginning that this journey of yours is going to be, full of obstacles. One day you are going to, feel like giving up, and I do understand, right? But make sure that you are not giving up. Make sure that you are present every single day for not only current affairs but managing your schedule also, right? And with this positive thought, we are going to start with today's headlines. Let's see what our first headlines tells to us. Now, it says that naval warship escort Indian vessels from the Gulf of Oman. Okay, as I told you that you'll be hearing this Iran and Israel news a lot of time, right? So make sure that you are writing all the keywords down. Make sure that you know where exactly the Strait of Hormuz is. ठीक है, उसके साथ साथ में you're understanding all the keywords. जो भी मैं keywords, through PPTs I'm coming up with, और उसके बाद में जो मैं बोलती हूँ, that you have to write it down. Make sure that that is pinned to your notebook. Now, let's understand, as we know that India, they consider this as an example that India is like a huge family, ठीक है, और इस फैमिली को जरूरत है of gas and oil, right, every day for cooking also, for transport also, for egg factories also, right? अब imagine करो that fuel is coming from the land of far away place, ठीक है, जिसका नाम है गल्फ रीजन, ठीक है. अब हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात करें, बहुत बार मैंने मैप पर भी दिखाया, राइट? सो द प्रॉब्लम इज हियर ओनली, यहीं पर जो है हमारी सिचुएशन अराइज हो रही है. सो दिस हाईवे, दिस बिजी हाईवे दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, जहां पे हमारा truck is carrying food, it is carrying fuel, it is carrying all the essential goods that we think of, जो हमारे लिए important है, right? Now suddenly one thing happens, some armed groups are there and they start attacking this route, ठीक है. Now this route becomes very unsafe, ठीक है. Drivers are scared, right? And the whole situation is chaotic, right? And this is exactly what is happening in this West Gulf region, ठीक है. यही चीज हमारी जो है मिडिल ईस्ट में, हमारी वेस्ट एशिया में हो रही है, ठीक है. Now इस कंफ्लिक्ट के चलते हुए वी आर गोइंग टू सी हाउ कंट्रीज आर ऑफन यूजिंग दिस प्लेस फॉर डाइवर्जन आल्सो एंड एज अ टूल आल्सो, ठीक है. तो ड्यू टू दिस कंफ्लिक्ट इन वेस्ट एशिया, जो हमारी शिप्स है वो अटैक हो रही है, स्पेशली जो हमारा नियर द रीजन ऑफ गल्फ ओमान, राइट? तो ये एरिया जो है बहुत ज्यादा क्लोज है टू द इंपॉर्टेंट रूट हमारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, राइट? अब ये अटैक हुआ क्यों है? क्योंकि रीजनल टेंशन चल रही है ईरान और इजराइल के बीच में, राइट? दिस प्रॉक्सी कॉन्फ्लिक्ट इज लाइक गोइंग एंड दिस विल गो ऑन फॉर लाइक मोर देन 1 मंथ, ठीक है. अभी और चलेगा 1-2 महीना और. सो जो भी लीडर्स, जो भी बेसिकली क्वेश्चनिंग आपको मिल रही है, राइट, मेक श्योर दैट यू आर राइटिंग डाउन. अगेन आई एम टेलिंग यू डू नॉट हैव टू मेंशन दैट व्हाट लीडर्स आर टेलिंग यू. You do not have to mention that what ministers are telling you. Ideologies नहीं लिखनी है. You just have to make sure that prelims के related क्या questions आ सकते हैं and how main answer basically can ask the question, ठीक है. बेसिक समझ में आ गया कि प्रॉब्लम कहाँ चल रही है. Okay. So let's understand that what exactly India did. So if we talk about India, India ने क्या किया? India ने पहले ही बोल दिया that we cannot take risk with our ships, ठीक है? So Indian Navy took action under Operation Sankalp. Operation Sankalp के बारे में मैंने बहुत डिटेल में बताया था किस लिए होता है, क्या-क्या measures हम इसमें लेते हैं, basically conflict arises, right? So Indian warships are sent to escort Indian ships, protect करने के लिए, bodyguard करने के लिए, और जो travel है, this of all the goods, वो सेफगार्ड करने के लिए, प्रॉपरली इंश्योर करने के लिए दैट दे आर ट्रेवलिंग सेफली, वो चीज के लिए हम लोगों ने क्या किया? ऑपरेशन संकल्प किया, राइट? नाउ okay, now if we talk about this, what kind of ships are involved in this? So very important ships are involved in this. कौन से ships हमारे पास में? So we have we have LPG carriers, ठीक है. शिवालिक नंदा देवी is there, ठीक है. उसके साथ साथ में जगलादकी, मतलब हमारे पास में different ships which are considered to be very important. ये जो ships है हमारी LPG कैरी करती है, क्रूड ऑयल कैरी करती है, राइट? Now there is a word that I mentioned, escort. Escort का मतलब यहाँ पर क्या है? This means that warships are going to travel alongside commercial ships, ठीक है. They are going to watch for danger also, right? They can respond if attack happens. जैसे कि जैसे देखा होगा आप लोगों ने, पुलिस एस्कॉर्ट करती है ना, कोई वीआईपी कार होती है. इन द सेम वे वी आर बेसिकली यूजिंग दीज शिप्स, ठीक है. यही जो है संकल्प साथी में, सॉरी, दिस ऑपरेशन संकल्प में होने वाला है, राइट? नाउ व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया? इंडिया जो है प्रॉपरली डिपेंड करती है हेवीली ऑन इंपोर्ट्स पे, ठीक है. मतलब 85 से 90% जो हमारा क्रूड ऑयल है यहाँ से इंपोर्ट होता है, राइट? तो दिस इज कमिंग फ्रॉम वेयर? दिस इज कमिंग फ्रॉम द गल्फ कंट्रीज, और इसीलिए दिस पॉइंटर, दिस पोजीशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, ठीक है. सो आई होप ऑपरेशन संकल्प क्या है समझ में आ चुका होगा. विल अंडरस्टैंड मोर बेसिक थिंग्स ऑफ इट, ठीक है. दोबारा से बता दूंगी दैट व्हाट दिस ऑपरेशन संकल्प इज, ठीक है. नाउ
अगर हम इसकी बात करें तो इफ बेसिकली शिप्स आर अटैक्ड, ठीक है, तो फ्यूल का जो सप्लाई हमारा डिक्रीज हो जाएगा, राइट, मैंने लास्ट क्लास में बताया था। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जो हमारा पेट्रोल की प्राइसेस है दैट विल आल्सो राइज, राइट, एलपीजी जो हमारा दैट विल बिकम एक्सपेंसिव, इसका मतलब हमारी इकोनॉमी सफर करेगी, राइट। तो नेवी की प्रोटेक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेवी की प्रोटेक्शन करना मतलब है वी आर प्रोटेक्टिंग इंडियाज इकोनॉमी, राइट, वी आर प्रोटेक्टिंग हुम, वी आर प्रोटेक्टिंग पीपल आल्सो, इंडियाज पीपल आल्सो, ठीक है। whatever I am saying, जो भी मैं keywords बोल रही हूँ, again telling you very important, write it down, ठीक है, इसी फॉर्म में आंसर्स लिखने होते हैं, राइट। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि अगर हमारी शिप्स होती है तो ये प्रॉब्लम्स हमें अराइज होंगी, ठीक है। अब हम लोग समझेंगे कि एग्जैक्टली ये ऑपरेशन संकल्प ये है क्या, ठीक है, इसमें क्या क्या इंक्लूड करते हैं एंड हाउ नेवी इज गोइंग टू हेल्प अस, ठीक है। अब ये जो ऑपरेशन संकल्प है नहीं, अभी नहीं बनाया गया है, लुकिंग एट द सिचुएशन ऑफ ईरान एंड इजराइल, दिस ऑपरेशन संकल्प is given to us in 2019, ठीक है, 2019 में ये हमारे पास में आया था। एज आई टोल्ड यू, these positions जो हमारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज है, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम जो एज अ टूल यूज किया जा रहा है, पहले भी इसको एज अ टूल यूज किया जा चुका है, राइट। सो नाउ इफ वी टॉक अबाउट दिस इज जस्ट अ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज की बात करें तो दिस इज द नैरो वाटर लेन वी आर टॉकिंग अबाउट, ठीक है, जो कि 33 किलोमीटर वाइड है, लोकेशन में बता चुकी हूँ, एंड अराउंड 20% ऑफ द वर्ल्ड्स ऑयल पासेस थ्रू दिस रूट, ठीक है। तो अगर यहाँ पे कोई भी छोटी सी प्रॉब्लम भी अराइज होती है, राइट, सो व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, वी आर टॉकिंग अबाउट ग्लोबल क्राइसिस, ठीक है। दिस इज व्हाई वी आर नॉट द ओनली वन, सिर्फ इंडिया इस चीज पर लुकआउट नहीं कर रहा है, ईच एंड एवरी कंट्री इज बेसिकली वाचिंग दिस पोजीशन, क्योंकि यहाँ पे ग्लोबल क्राइसिस की बात हो रही है, ठीक है। नाउ अब बात करते हैं कि एग्जैक्टली कहां से आया। सो इफ वी टॉक अबाउट दिस, ड्यूरिंग द ईरान एंड इजराइल वॉर, ईरान और इराक वॉर, ठीक है, तो देयर वाज समथिंग टैंक वॉर चल रहा था, राइट, मतलब दोनों ही कंट्रीज क्या कर रही थी, एक दूसरे पे अटैक कर रही थी ताकि जो हमारा ऑयल शिप्स है उसको अटैक कर सके, राइट। तो यहाँ से ग्लोबली ना एक चीज सबको समझ में आई दैट जो हमारा ऑयल रूट्स है ये आर दीज आर लाइक ऑलवेज वनरेबल, ठीक है। तो इसीलिए वी हैव टू कीप अ आई ऑन दिस, ठीक है। इट्स नॉट कि एक कंट्री जो है वहां पे इज सुपीरियर एंड मेंटेनिंग ऑल ऑफ दिस थिंग्स, नहीं, दे डिसाइडेड कि हर कंट्री जो है बेसिकली मेक श्योर कि वहां पे जो है वो एरिया जो है हमारा एज अ टूल ना यूज किया जाए, राइट। तो दिस टैंक वॉर, दिस इज व्हाट मेड अस अंडरस्टूड। नाउ उसके बाद में देयर इज बर्थ ऑफ ऑपरेशन संकल्प। अब इस पे इंडिया ने क्या करा, हमारा ये ऑपरेशन संकल्प आया 2019 में, राइट। अब यहाँ पर जो हमारा 2019 में है, दे डिसाइडेड, इंडिया डिसाइडेड कि ठीक है, क्योंकि दिस रूट दैट वी आर टॉकिंग अबाउट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अस, ठीक है, इकोनॉमिकली भी, फॉर आवर पीपल आल्सो एंड फॉर आवर लाइक पॉलिटिकल रीजंस आल्सो, दिस रूट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो वी कैन नॉट डिपेंड ऑन अदर्स कि हमें प्रोटेक्शन दो, राइट, वी हैव टू डू समथिंग फॉर आवरसेल्फ, राइट, विल प्रोटेक्ट आवर शिप्स आवरसेल्फ, राइट। सो दिस वाज द मेन एजेंडा फॉर ऑपरेशन संकल्प, और इसीलिए ये चीज कब बनाई गई थी, ये चीज हमारी बनाई थी 2019 में, ठीक है। अब बात करेंगे कि एग्जैक्टली किस रीजन से बनाई गई थी, कि क्या क्या बेसिकली इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव तो हमारे पास में यही है कि हम अपनी जो वी हैव टू प्रोटेक्ट इंडियन फ्लैगशिप्स आल्सो, ठीक है, मतलब जो भी ऑयल शिपमेंट होगी, राइट, वी हैव टू मेक श्योर जो भी टैंकर्स होंगे, जो भी हमारा दिस फ्रीडम ऑफ नेविगेशन वी टॉक अबाउट, मतलब दीस शिप्स कैन मूव फ्रीली, राइट, वी हैव टू मेक श्योर दैट ये सारी की सारी चीजें स्मूथली हो एंड विदाउट एनी कॉन्फ्लिक्ट इट हैपेंस, एंड ऑल दीस कम्स अंडर व्हाट, अंडर दिस ऑपरेशन संकल्प, ठीक है। आई होप इट इज अंडरस्टूड। ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड उसके बाद में कि 2019 में एग्जैक्टली हुआ क्या था, जो हमने टैंकर की क्राइसिस की बात करी, व्हाट एग्जैक्टली वाज इन दिस टैंकर क्राइसिस। तो हुआ ये था दैट मेनी शिप्स वर देयर, ठीक है, एंड दे वर अटैकिंग यूजिंग माइंस, और इसी की वजह से दे वर डैमेजिंग मिस्टीरियसली, कंट्रीज ब्लेम ईच अदर। उसके बाद में कोई बेसिकली अथॉरिटी नहीं थी, कोई रिस्पांसिबिलिटी नहीं थी हु कुड टेल दैट आई एम रिस्पांसिबल फॉर दिस, राइट। स्पेशली अगर हम यूएस और ईरान की कंफ्लिक्ट की बात करें, राइट, सो व्हाट एग्जैक्टली वी अंडरस्टूड फ्रॉम दिस कि कोई क्लियर वॉर तो है नहीं, राइट, बट स्टिल देयर इज डेंजर, राइट। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ग्रे जोन कॉन्फ्लिक्ट, जहां पर हमें पता नहीं है, राइट, हु इज रिस्पॉन्सिबल, राइट, बट स्टिल देयर इज अ डेंजर, राइट। तो इसको हम बोलते हैं ग्रे जोन कॉन्फ्लिक्ट, व्हिच इज अनदर कीवर्ड दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड, ठीक है। ओके, नाउ अनदर पॉइंटर आपको जो समझने की जरूरत है, अगर इंडिया की सिचुएशन की बात करें तो इंडिया के पास में देयर आर थाउजेंड्स ऑफ सेलर्स इन दैट रीजन, मतलब ह्यूज ऑयल डिपेंडेंसी हमारे पास में, राइट। लेकिन एक बात समझने था दैट इंडिया डिड नॉट जॉइन एनी मिलिट्री अलायंसेस, जैसे कि यूएस ने कोलिशन किया था, इंडिया ने ऐसा कुछ नहीं किया, राइट। इंस्टेड इंडिया डिड व्हाट, इंडिया चोज एन इंडिपेंडेंट अप्रोच, मतलब ऑपरेशन संकल्प लिया कि हम जो है अपनी शिप का अपने आप ध्यान रखेंगे, हम बेसिकली वी आर गोइंग टू मेक श्योर जो भी हमारा शिपमेंट आ रही है, वी आर गोइंग टू मेक श्योर दैट दे आर बेसिकली रीचिंग सेफली एंड कमिंग सेफली, ठीक है। सो दिस वाज चोजन इन 2019 अदर देन यूएस, जिन्होंने कोलिशन की तरफ में हाथ बढ़ाया था, राइट। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट दिस ऑपरेशन संकल्प, तो इसको यूनिक कैसे बनाया जाता है, सो ओके,
देयर इज दिस थिंग दैट इज एस्कॉर्ट शिप, ठीक है, बट दैट्स नॉट द ओनली थिंग. एस्कॉर्ट शिप तो है, राइट, बट देयर इज अनदर पॉइंटर दैट इज इट इज नॉट एन एस्केलेटरी मिशन, ठीक है, ये सिर्फ एस्केलेटरी मिशन नहीं है, राइट. नाउ इंडिया इज बेसिकली प्रोटेक्टिंग शिप्स बट नॉट टेकिंग साइड इन कंफ्लिक्ट, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. एंड दिस इज द स्ट्रेटेजिक अप्रोच दैट इंडिया इज कमिंग अप विद, ठीक है. क्यों ये स्ट्रेटेजिक न्यूट्रलिटी क्यों लेकर चल रही है? बिकॉज वी नीड ईच एंड एवरी कंट्री. हम लोग डेवलपिंग कंट्रीज हैं, ठीक है. अब ऑयल में हमें कोई चाहिए, प्रोडक्शन में हमें कोई चाहिए, राइट, टेक्नोलॉजी में हमें कोई चाहिए, सो वी कैन नॉट डिपेंड ऑन वन कंट्री. इसीलिए व्हेन वी टॉक अबाउट दीज नियर बाय कंट्रीज वी मेंटेन आवर रिलेशनशिप्स विद देम फॉर दिस रीजन, ठीक है. इसलिए हम क्या लेकर चलते हैं? हम लेकर चलते हैं दिस स्ट्रेटेजिक न्यूट्रलिटी, व्हिच इज द अनदर कीवर्ड दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड while understanding the relationship with other countries of India, ठीक है. I hope it is understood. Okay. Okay, now there is another thing that is continuous presence, ठीक है. अब continuous presence का मतलब क्या है? That many countries are sending ships only during crisis, ठीक है. लेकिन अगर इंडिया की बात करें, इंडिया क्या मेंटेन करके चल रहा है? लॉन्ग टर्म डिप्लॉयमेंट मेंटेन करके चल रहा है, ठीक है. तो ये चीज क्या दिखाती है? ये चीज हमें दिखाती है सीरियस मैरीटाइम कमिटमेंट. मतलब इट इज बेसिकली मेंटेनिंग टू द लॉन्ग टर्म टर्म्स, ठीक है. ऐसा नहीं है कि कोलिशन बना लिया और उसके बाद में व्हाटएवर इज कमिंग इन द फ्यूचर वी हैव टू टैकल विद दैट. नहीं, लॉन्ग टर्म मेजर्स लेकर चल रहा है, ठीक है. दूसरा इंफॉर्मेशन बेस्ड वॉरफेयर, ठीक है. अब इंफॉर्मेशन बेस्ड वॉरफेयर क्या है? तो इंडियन नेवी इज वर्किंग विद व्हाट? वो शिपिंग कंपनीज के साथ में काम कर रही है विद मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, ठीक है. तो जहां पे शिप्स आर एडवाइज ऑन सेफ रूट्स, उनको अलर्ट दिया जाता है. सो इट्स नॉट जस्ट मिलिट्री वी आर टॉकिंग अबाउट, राइट. सो इट्स लाइक द होल सिस्टम कोऑर्डिनेटिंग विद ईच अदर, राइट, ताकि इस सिचुएशन से जो है हम लोग बेसिकली बाहर निकल सके. आई होप इट इज अंडरस्टूड. Now, let's understand another pointer that is role of Yemen civil war. ठीक है. अब हिस्ट्री की अगर हम बात कर ही रहे हैं तो ये भी एक बहुत बड़ा मेजर जो है यहाँ पे प्ले करता है, राइट. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट दिस, सो बेसिकली हाउथीज दे स्टार्टेड टारगेटिंग शिप्स, ठीक है. रेड सी पे शुरू कर दिया, गल्फ रीजन पे शुरू कर दिया, राइट. उन्होंने ड्रोन्स यूज करे, मिसाइल यूज करे, राइट. तो देयर इज वन इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि शिप्स आर नॉट रिलेटेड टू द वॉर, राइट. एंड इफ दे आर गेटिंग अटैक्ड, मतलब यहाँ पे ग्लोबल शिपिंग दे आर बिकमिंग अनप्रेडिक्टेबल, राइट. सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस, मतलब हम लोग किसकी बात करते हैं? हम लोग बात करते हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है. आई होप इट इज अंडरस्टैंड. अब देयर इज अ वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंटर जो आपको समझने की जरूरत है, दैट इज रूल टेकर, ठीक है. अब मैंने एक मेंशन करा था वर्ड कि रूल टेकर से हम लोग रूल मेकर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? अर्लियर पहले क्या होता था? इंडिया वाज लाइक डिपेंडेंट, ठीक है. ग्लोबल पावर्स पे डिपेंडेंट होती थी पहले सिक्योरिटी पर, ठीक है. लेकिन इंडिया नाउ इज प्रोटेक्टिंग इट्स ओन इंटरेस्ट, ठीक है. मतलब दूसरी कंट्रीज को इनडायरेक्टली हेल्प करती है अब इंडिया, राइट. सो दिस इज द चेंज दैट वी हैव सीन, वी हैव ऑब्जर्व, राइट. तो इसका मतलब क्या है? दिस इज बेसिकली नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर. नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर का मतलब क्या है? इट इज प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी नॉट ओनली फॉर इटसेल्फ बट ऑल्सो इज कंट्रीब्यूटिंग टू द रीजनल स्टेबिलिटी ऑल्सो. और उसके साथ साथ में जो भी ग्लोबल ट्रेड है, राइट, उसको भी सेफली लेकर चल रही है, ठीक है. विच इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट व्हेन यू आर राइटिंग डाउन कि इंडिया की डेवलपमेंट किस फेज में हो रही है व्हेन इट कम्स टू रीजनल वॉर, व्हेन इट कम्स टू द कोल्ड वॉर लाइक दिस, ठीक है. जब ऐसे कंफ्लिक्ट होते हैं तो वेयर इंडिया स्टैंड्स, दीज आर द कीवर्ड्स दैट यू हैव टू यूज, राइट. सो व्हाट डिड वी अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस? हमें समझ में आ गया है दैट इंडियन समवेयर इज बिकमिंग इंडिपेंडेंट, राइट. तो हमें क्या क्या समझ में आया? हमें एक तो पॉइंटर समझ में आया दिस चोक पॉइंट. चोक पॉइंट की बात करें तो हमें क्या समझ में आया? हमें समझ में आया दिस हॉरिजन पॉइंट, ठीक है, जहां पे हमें दिखा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज के बारे में. उसके बाद में ग्रे जोन कॉन्फ्लिक्ट के बारे में समझा दैट कोई फुल वॉर नहीं है, ठीक है, लेकिन कॉन्टिन्यूअस टेंशन चले ही जा रही है, ठीक है. देयर इज नो अथॉरिटी हु कैन टेक रिस्पांसिबिलिटी ऑफ इट, राइट, बट वी कैन सी व्हाट वी कैन सी द वॉर, राइट. अब उसके बाद में एक और चीज समझ में आई, दैट इज एमडीए, मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस. मतलब you are knowing everything that is happening in the sea, जो कि हमारी नेवी अभी करके चल रही है, right. So that term is known as what? That is known as MDA, ठीक है. I hope this is understood. Okay, got it. Okay, now let's move to another news. दूसरी हेडलाइन क्या बोलती है? चलो उससे पहले क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर हम दोबारा मूव करेंगे दूसरी हेडलाइन पर, ठीक है. Okay, the question says
With reference to the Operation Sankalp, consider the following statement. It was launched to ensure the safety of Indian flag vessels in the Persian Gulf region. Second, it involves India joining a US-led military coalition. It aims to maintain freedom of navigation in critical sea lanes. Which is the correct option that we have? So option number 1 है, बिल्कुल सही है, because it was launched to ensure safety only. ठीक है. Statement 2 incorrect है, because India did not join any US-led coalition. यही बताया मैंने, right? India followed what? उन्होंने strategic autonomy follow करी थी. मतलब what? They are going to act independently. ठीक है. So this pointer is wrong. ठीक है. It aims to maintain freedom of navigation in critical sea lanes. बिल्कुल सही. So what is the correct option that we have? We have 1 and 3. That is option number B. ठीक है. I hope it is understood. Good. The option is B. Very good. Rest of the students answer क्यों नहीं आ रहे हैं मुझे? Why I cannot see answers? Portal पर भी answer नहीं है. Okay. Now with this, let's move to another. Pakistan strike on Afghanistan hospital. ठीक है. बहुत important news है, right? So we are going to understand this news not only with the context of the current situation. हम लोग समझेंगे कि UPSC में जब ऐसे questions आते हैं, right? So we are going to understand with the protection and with the terrorism and with the protection. ठीक है. दोनों के बीच का conflict समझेंगे. And when we come to these kinds of dilemma, UPSC हर बार एक question या तो पॉलिटी में पूछेगा, गवर्नेंस में पूछेगा, या फिर एसए में पूछेगा, एथिक्स में पूछेगा. बहुत सारे एग्जामिनेशंस के लिए दिस स्ट्रेटेजी, दिस न्यूज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. अब क्या बात कर रहे हैं हम लोग बात कर रहे हैं एक मेजर एयर स्ट्राइक की, जो कि बेसिकली हॉस्पिटल में हुई है इन काबुल, राइट? तो हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट द कैपिटल ऑफ अफगानिस्तान, राइट? तो अफगानिस्तान ने बोला दैट पाकिस्तान कैरिड आउट द स्ट्राइक. ठीक है. और इसमें जो है अराउंड 400 पीपल आर किल्ड एंड 250 प्लस आर इंजर्ड. मतलब हम लोग यहाँ क्या बात करें? वी आर टॉकिंग अबाउट ह्यूमन कंसर्न है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. क्योंकि हॉस्पिटल पर अटैक करना इज समथिंग वेरी डिफरेंट. Now we are going to understand कि ये जो हॉस्पिटल वाला कंसेप्ट है, what exactly is Pakistan saying to this. ठीक है. तो exactly टारगेट क्या किया गया? So there is a drug rehabilitation hospital. ठीक है. ओमिड हॉस्पिटल है. So it had like around 2000 beds, right? And nearly 3000 patients were there at that time जब ये अटैक हुआ था, right? तो जो हमारे पास पेशेंट्स थे वो बेसिकली बहुत सारे थे, उसके बाद सिविलियंस भी थे, राइट? सो दिस इज नॉट समथिंग न्यू दैट वी आर सीइंग. ठीक है. ऐसी सिचुएशंस पहले भी बहुत बार आ चुकी है. ठीक है. पहली सिचुएशन हमारे पास में कब आई है? ये कुंडूज हॉस्पिटल एयर स्ट्राइक हमारे पास में पहले हो चुका है. ठीक है. तो यहाँ पे जो था, दिस हॉस्पिटल वाज बॉम्ब्ड इन अफगानिस्तान, जो कि इट वाज रन बाय द डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, राइट? तो क्लेम करा यूएस मिलिट्री ने और उन्होंने बोला कि इट वाज टारगेटिंग टेररिस्ट, राइट? बट बाद में उन्होंने एक्सेप्ट करा कि ठीक है, इट वाज अ मिस्टेक. ठीक है. तो यहाँ से क्या समझ में आया? इस एग्जांपल से हमें समझ में क्या आया? दैट पहला नैरेटिव इज लाइक डिफेंसिव, कि हमने तो अटैक से अपने बेसिकली डिफेंस के उसमें किया था, राइट? बट ट्रूथ कम्स आउट लेटली. ठीक है. इसी एग्जांपल्स को वी आर गोइंग टू कनेक्ट इट विद द प्रेजेंट एग्जांपल, जो कि अभी अफगानिस्तान में है. ठीक है. तो पहले एग्जांपल ये. ठीक है. नाउ दूसरा एग्जांपल हमारे पास में क्या है? दूसरा एग्जांपल इज अबाउट पुलवामा. ठीक है. सबको याद होगा ये वाला अटैक, राइट? सो इंडिया ने बोला दैट टेरर कैंप्स वर डिस्ट्रॉयड, राइट? बट पाकिस्तान सेड टू दिस कि नहीं, कोई डैमेज ही नहीं हुआ, बेसिकली ट्रीज वर हिट, या फिर बेसिकली जो भी रिसोर्सेज थे वो हिट हुए थे, वहां पे कोई कैजुअलिटी तो हुई नहीं थी, राइट? So later on they accepted, right? Later on in this example also the truth came out, right? So what exactly did we understand कि same event हुए. ठीक है. दो situations जो हमारे पास में opposite claims हमेशा आते हैं हर example में, right? तो ये जो सिनेरियो है आज का अफगानिस्तान और पाकिस्तान का, यहाँ पर भी यही चीज हमें मिलेगी, राइट? So अफगानिस्तान will claim something और पाकिस्तान will claim something, right? Now लेट्स अंडरस्टैंड इसके पीछे की बैक एंड स्टोरी क्या है, कि ये जो हम लोग बात करते हैं ये ट्रूथ की, राइट? दैट व्हाई इफ कंट्री सम कंट्री इज अटैकिंग, राइट? सो व्हाई दे आर नॉट कमिंग आउट? वो हमेशा आके क्यों नहीं बोलते कि हमने अटैक करा? इफ दिस इज समथिंग रिलेटेड टू टेररिज्म, ठीक है, अगर वो टेररिज्म से रिलेटेड है तो दिस इज द कंसर्न वी आर टॉकिंग अबाउट, राइट? तो ग्लोबली उसके साथ तो शेयर करना चाहिए, बट व्हाई वी आर नॉट शेयरिंग दैट? व्हाट्स द रीजन बिहाइंड इट? देखो, पहला रीजन हमारे पास में है दिस फोग ऑफ वॉर. या कीवर्ड है, याद रखना इसको. फोग ऑफ वॉर का मतलब है कि मतलब ड्यूरिंग वॉर व्हाट हैपेंस, कंफ्यूजन होती है, कोई क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, लिमिटेड एक्सेस होता है, राइट? तो इसको हम क्या बोलते हैं? फोग ऑफ वॉर. दूसरा प्रोपेगेंडा नैरेटिव बिल्डिंग, मतलब गवर्नमेंट इज कंट्रोलिंग मीडिया, दे आर बेसिकली कंट्रोलिंग इन्फॉर्मेशन रिलीज, राइट? तो इसी की वजह से जो हमारा पब्लिक ओपिनियन है, तुम्हारा ओपिनियन, मेरा ओपिनियन, राइट, दिस बिकम्स बेसिकली डिप्लोमेटिक, राइट? अब उसके बाद में तीसरी चीज क्या है? लैक ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन ऑल्सो. ठीक है. अब वहां से कोई कंट्री कुछ बोल रही है, यहाँ से कोई कंट्री कुछ बोल रही है, राइट? तो इसी की वजह से क्या होता है, हमारे पास में प्रॉपरली कोई जो है मेंशन नहीं होती है, राइट? कॉन्फ्लिक्ट जोन्स की अगर हम बात करें, दे आर क्लोज, वो डेंजरस होते हैं, न्यूट्रल एजेंसीज वहां पे इजीली एंटर नहीं कर सकती है. इसीलिए व्हाट डू वी लैक है? वी आर लैकिंग विद द फैक्ट्स इन है. ठीक है. तो इन तीन चीज की वजह से जो अभी सिचुएशन है, व्हाटएवर पाकिस्तान इज सेइंग, व्हाटएवर अफगानिस्तान इज सेइंग, राइट, वी हैव टू डिवाइड आवर आइडियोलॉजीज इन बिटवीन दीज टू. ठीक है. वी कैन नॉट से पाकिस्तान डिड राइट, वी कैन नॉट से अफगानिस्तान डिड राइट, राइट? अब
ये तो मैंने सिचुएशन बता दिया कि तुम्हें बेसिकली इस न्यूज को लेकर कैसे चलना है, राइट, एंड व्हाट आर द कीवर्ड्स दैट यू हैव टू यूज जब हमारे पास में ऐसी सिचुएशन अराइज होती है, ठीक है। नाउ एग्जैक्टली अगर हम बात करें कि अबाउट दिस लीगल एंगल, राइट, बट एक्सेप्शन, ठीक है। अब लीगल एंगल क्या है यहाँ पे, जैसा कि क्या हुआ कि अंडर दिस जेनेवा कन्वेंशन हॉस्पिटल्स आर प्रोटेक्टेड सोल्स, ठीक है। उन पर अटैक करना मतलब क्या होता है, वॉर क्राइम, ठीक है। लेकिन एक एक्सेप्शन है यहाँ पर, हॉस्पिटल्स पर आप अटैक कर सकते हो, कब अटैक कर सकते हो, जब वहां पर आप लोग हाइड कर रहे हो कोई वेपन, मिलिट्री ऑपरेशन अगर वहां पर चल रहा है, राइट, तो वो उसके बाद हम लोग बोल सकते हैं दैट ओके दिस इज द लेजिटिमेट टारगेट, ठीक है। अगर वहां पर टारगेट किया तो दिस इज द एक्सेप्शन केस दैट वी हैव, ठीक है। नाउ when we talk about this now, still ये अभी भी अगर वहां पे सिविलियंस की बात होती है, देन ऑल्सो इट कैन बी लाइक क्वेश्चन, ठीक है। अगर कोई ऑपरेशन हो भी रहा है, अगर कोई हाइड आउट वहां पर है भी, राइट, बट इफ इट इज कॉस्टिंग दिस नंबर ऑफ ह्यूमन, ठीक है, लाइफ, तो फिर उसके बाद में उस चीज को फिर भी क्वेश्चन किया जाएगा, राइट। सो अभी जो मेरा डिस्प्यूट चल रहा है वो एक्जैक्टली सेम ही है। एक साइड बोल रही है कि वो हॉस्पिटल था, राइट, दूसरा साइड बोल रही है कि वो हॉस्पिटल जो था मिलिटेंट्स के लिए यूज हो रहा था, वो फ्यूचर के लिए फॉर टेररिज्म वी हैव टू डू दिस, राइट, वो अटैक करना बहुत जरूरी था, राइट। तो ये दो सिचुएशंस में अभी जो हमारा डिवीजन है, ठीक है। आई होप इट इज अंडरस्टूड। ओके, देयर इज अनदर पॉइंटर आल्सो जो कि हमारा है दिस पॉइंटर about the plausible deniability, ठीक है। now when we talk about this plausible deniability, तो इसका मतलब countries are often seen, वो कभी अपनी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेती है, राइट, दे कीप देयर स्टेटमेंट वेरी वेग, क्यों, ताकि उनका जो इंटरनेशनल पनिशमेंट है, राइट, उनका जो सैंक्शंस है या फिर जो ग्लोबल क्रिटिसिज्म है उससे वो चीज बच सके, ठीक है। सो दिस इज द प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी, ठीक है। आई होप इट इज अंडरस्टूड। सारे के सारे आर द कीवर्ड्स, प्लीज मेक श्योर दैट यू आर राइटिंग इट डाउन, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द यूपीएससी कंटेक्स्ट, ठीक है। Okay, now let's move to another pointer, that is United Nations call for investigation, ठीक है। अब there is call for investigation also, ठीक है, एनजीओ को बुलाया गया, मीडिया को बुलाया गया ये वेरीफाई करने के लिए, राइट। बट अगर हम बात करें इस फाइनल ट्रूथ की एग्जैक्टली सिचुएशन का हमें पता कैसे चलेगा, सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट इट विल टेक मंथ्स और ईयर्स, राइट। तो एग्जैक्टली ये चीज हुई क्यों, ये जो हमारे पास में सिचुएशन है अराइज हुई ही क्यों, सो देयर आर लाइक सर्टेन रीजंस टू इट। ये एक सिंगल इंसिडेंट की बात नहीं कर रहे हैं, राइट, इट इज दिस इज द पार्ट ऑफ बिगर कॉन्फ्लिक्ट दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, राइट। अफगानिस्तान और पाकिस्तान की बात करें तो ये लड़ाई हमारी आज की नहीं है, दिस इज स्टार्टेड इन फेब 2026, राइट। इसमें हमारी एयर स्ट्राइक्स चल रही हैं, बॉर्डर क्लैशेस आर देयर, ड्रोन अटैक्स आते हैं, राइट। ये चीजें पहले से हमारे पास में चल रही है फरवरी से, राइट, और इससे पहले से भी हमारी जो सिचुएशन है दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट रहता है, ठीक है। रूट कॉज क्या है, पाकिस्तान बोलता है कि अफगानिस्तान इज गिविंग शेल्टर टू मिलिटेंट्स, ठीक है, स्पेशली दिस तरीक ए तालिबान पाकिस्तान, ठीक है, वो बोलते हैं कि इसको जो है दिस टीटीपी इट इज बेसिकली गिविंग शेल्टर टू देम, ठीक है। अब अफगानिस्तान और पाकिस्तान का जो कॉन्फ्लिक्ट है ये इसी वजह से चल रहा है, राइट। तो पाकिस्तान इज बेसिकली अटैकिंग विदाउट जस्टिफिकेशन, ऐसा अफगानिस्तान ने बोला है। उन्होंने बोला है कि ये जो ट्रस्ट डेफिसिट है, राइट, हमारा जो कंटिन्यूअस वायलेंस है वो तुम्हें देखने को मिल रहा है, राइट। सो व्हाट अफगानिस्तान इज सेइंग, जो ये बेसिकली क्लेम कर रहे हैं दैट वी आर हाइडिंग दिस टाइप ऑफ ग्रुप, दिस टीटीपी ग्रुप, राइट, इन आवर रीजन, वो बिल्कुल फॉल्स है, विदाउट एनी क्लेम है, विदाउट एनी फैक्ट है, राइट। और इस चीज पर अटैक करना, हॉस्पिटल्स पर अटैक करना, राइट, सो वी आर रेडी विद फुल वॉर, दिस इज व्हाट अफगानिस्तान सेड, ठीक है। आई होप इट इज अंडरस्टूड, बेसिक समझ में आ चुका होगा एग्जैक्टली। ओके, so after this another thing hidden but important facts, that is the first open war situation, ठीक है। अब one important point that you have to understand कि इसका मतलब क्या है, ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं किया वो, राइट, बट मिलिट्री एक्शन जो है कंटिन्यूअसली देखने को मिले हैं और मिलेंगे, राइट। मतलब हॉस्पिटल्स, होम्स, दे आर गोइंग टू बी डैमेज, राइट। वो वायलेट क्या करते हैं, इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ जो है हमारा वायलेट करते हैं, दिस आईएचएल, ठीक है। नाउ अनदर थिंग, सिविलियन इंपैक्ट, एज आई टोल्ड यू व्हेनेवर दिस वॉर इज हैपनिंग, राइट, we are going to be impacted a lot, civilians are going to be impacted a lot, right। यहाँ पे जो हम लोग बात करते हैं सिविलियंस बेसिकली उनकी जान जाती है, हॉस्पिटल्स डैमेज होते हैं, होम्स आर डैमेज, राइट। तो ये जो है हमारा आईएचएल करता है, राइट। अगेन रोल ऑफ टेरर ग्रुप्स, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंटर। तो रीजन हैज लाइक प्रेजेंस ऑफ टीटीपी, ठीक है, आईएसआईस के ग्रुप है यहाँ पर, इसीलिए जो हमारी सिचुएशन है और ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती है, राइट। सो दिस इज नॉट द स्टेट वर्सेस स्टेट जो लड़ाई कर रही है, नहीं, दिस इज अबाउट द नॉन स्टेट एक्टर्स आल्सो, जो हमारे पास में आईएसएस जैसे ग्रुप्स है, राइट, जैसे टीटीपी वाले ग्रुप्स है, राइट। दिस इज समथिंग टू बी कंसर्न अबाउट, राइट, क्योंकि अगर हम लोग ऐसे ग्रुप्स को भी इंक्लूड कर रहे हैं, सो समवेयर दिस इज गोइंग बियॉन्ड द आइडियोलॉजीज, दिस इज गोइंग द बियॉन्ड स्टेट वॉर्स, ठीक है। नाउ आफ्टर दिस अनदर पॉइंटर, उसके बाद में हम लोग बात करते हैं ग्लोबल रिएक्शंस की।
तो इस चीज पर यूनाइटेड नेशन ने बोला है कि दोनों ही बेसिकली पोजीशंस को दे एक्सपेक्ट कंसर्न्स आल्सो, उन्होंने बोला कि सीज फायर कर देना चाहिए, राइट। इंडिया की बात करें, इंडिया बेसिकली इज कंडेमिंग अटैक, उन्होंने बोला कि पाकिस्तान ने जो किया वो बिल्कुल गलत किया। चाइना की बात करें तो उन्होंने बोला कि दोनों ही कंट्रीज को बेसिकली बैठ के चीजों का समझौता करना चाहिए, समथिंग रिलेटेड टू द सीज फायर होगी, ठीक है। दोनों ही कंट्रीज जो है सीज फायर की बात करें, व्हेन इट कम्स टू इंडिया, इंडिया इज बेसिकली कंडेमिंग द एक्ट ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। अब उसके बाद में देयर इज अनदर थिंग कॉल्ड दैट इज अबाउट द इंफॉर्मेशन वॉर, ठीक है। इंफॉर्मेशन वॉर का क्या, क्योंकि दोनों ही कंट्रीज दे आर गिविंग डिफरेंट डिफरेंट कैजुअलिटी नंबर्स, राइट। दे आर ब्लेमिंग ईच अदर, राइट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं नैरेटिव वॉरफेयर, ठीक है। कीवर्ड है, मेक श्योर दैट यू आर राइटिंग डाउन। नैरेटिव वॉरफेयर बोलते हैं, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं प्रोपेगेंडा बैटल, ठीक है। दोनों ही कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट है। आई होप इट इज अंडरस्टूड, यहां तक समझ में आ गया होगा। Okay, now after this let's understand कि why this matters for world, ठीक है। अफगानिस्तान पाकिस्तान रीजन इज ऑलरेडी अनस्टेबल, ठीक है। ओके, अब क्या है कि अगर हमारे पास में कंफ्लिक्ट अराइज होता है, ठीक है, तो दिस विल अफेक्ट साउथ एशिया सिक्योरिटी आल्सो, ठीक है। तो हमारा जो दिस टेररिस्ट अटैक है वो बेसिकली और ज्यादा स्प्रेड होने वाला है, राइट। रिफ्यूजी क्राइसिस और ज्यादा हो जाएगा। इंडिया के लिए मैटर क्यों करता है, बिकॉज इंडिया इज क्लोज टू दीज रीजन। अगर यहाँ पर इंस्टेबिलिटी होती है, मतलब इंडिया में इंस्टेबिलिटी होती है, मतलब सिक्योरिटी का थ्रेट हमें होगा, राइट। तो टेररिज्म का कंसर्न और ज्यादा पड़ेगा, राइट। तो हमारा यहाँ पे बेसिकली क्या इफेक्ट होगा, हमारा इफेक्ट होगा रीजनल डिप्लोमेसी, because we are very very close to these two countries that we are talking about, ठीक है। तो इसीलिए दिस इज नॉट द कंसर्न ऑफ ओनली दीज टू कंट्रीज, क्योंकि नियर बाय कंट्रीज है तो हमें अपनी सिक्योरिटी भी लेकर चलनी पड़ेगी, राइट। एंड वी हैव टू मेक श्योर दैट वी आर मेंटेनिंग दीज थिंग्स आल्सो, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। चलो, नाउ लेट्स मूव टू अनदर न्यूज। Is there any question that you want to ask, any pointer that you want me to repeat? Now, let's move to another news. Address attacks on Hindu temples in the US, ME says, ठीक है। छोटी सी न्यूज है बट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कवर कर लेते हैं इसको भी। ओके, दो कंट्रीज, दोनों दोस्त हैं, यूएसए, और हम किसकी बात करें, हम लोग बात करें इंडिया की, ठीक है। अब इमेजिन करो देयर इज अ थर्ड ग्रुप, ठीक है। मतलब इस थर्ड ग्रुप को ऐसे लिखो जो रिपोर्ट कार्ड चेक करता है, इसका नाम है यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजन फ्रीडम, ठीक है। अब ये ग्रुप क्या चेक करता है कि कंट्रीज आर रिस्पेक्टिंग रिलीजियस फ्रीडम या फिर नहीं, ये काम है इसका चेक करने का। अभी एग्जैक्टली सिचुएशन क्या हुई है, तो इफ वी टॉक अबाउट दिस, व्हाट एग्जैक्टली द सिचुएशन अराइज, तो यूनाइटेड स्टेट कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, राइट, इन्होंने जो है कुछ कमेंट किया है, राइट। तो व्हाट डिड दे से, दे सेड दैट रिलीजियस फ्रीडम इन इंडिया इज डिक्लाइनिंग, ठीक है। तो उन्होंने सजेस्ट क्या किया, उन्होंने सजेस्ट किया है कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न में सीपीसी में इनको डाल दीजिए, ठीक है। तो बेसिकली ये सैंक्शंस हमें बोलता है दिस सैंक्शंस शुड बी कंसीडर्ड, तो दिस सैंक्शंस कम्स इन द यूएस लॉ, ठीक है। ये क्या बोलता है, ये बात करता है इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम की, ठीक है। मतलब ये किसकी बात करता है, ये बात करता है सीपीसी की, ठीक है। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट दिस, एग्जैक्टली क्या है, जहां पे ऐसी कंट्री जहां पे रिलीजन फ्रीडम का वायलेशंस होता है, या फिर समथिंग वेरी सीरियस इज हैपनिंग, या फिर कोई सिस्टमैटिक अप्रोच नहीं व्हेन इट कम्स टू रिलीजन, ठीक है, तब उनको इस चीज में कंसीडर किया जाता है, ठीक है। आई होप इट इज अंडरस्टूड। नाउ एग्जैक्टली अगर हम बात करें तो इंडिया पे इस चीज ने क्या रिएक्शन दिया, इंडिया ने बेसिकली इस चीज को स्ट्रांगली रिजेक्ट करा, ठीक है। उन्होंने बोला कि ऐसा सच है ही नहीं। तो रूल्स फॉरेन मिनिस्ट्री, राइट, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, इंडिया ने इस चीज को बोला दैट रिपोर्ट इज बायस्ड, राइट, मोटिवेटेड है और बहुत ही सिलेक्टिव जो है पिक्चर दे रही है, विदाउट एनी फैक्ट, विदाउट एनी प्रॉपर इंफॉर्मेशन, राइट। दिस इज व्हाट मिनिस्टर ऑफ अफेयर्स सेड, ठीक है। एक्सटर्नल अफेयर्स ने बेसिकली ये बोला है, ठीक है। अब इसके साथ साथ में इंडिया डिड नॉट स्टॉप हियर, इंडिया ने बेसिकली काउंटर आर्ग्यूमेंट किया इस चीज पे, राइट। नाउ क्या काउंटर आर्ग्यूमेंट किया, ओके, सो व्हाट इशू डिड इंडिया रेस, सो इंडिया डिड नॉट जस्ट रिजेक्ट, ठीक है। उन्होंने इस चीज पे काउंटर आर्ग्यूमेंट दी। तो पहला उन्होंने तो क्या बोला कि आप जो है अपने उस पर फोकस कीजिए, राइट। सो व्हाट एग्जैक्टली दे सेड, उन्होंने एग्जैक्टली इस चीज पे क्या बोला कि हिंदू टेम्पल्स आर आल्सो बीइंग अटैक्ड, ठीक है। जो हमारे पास में दिस वेंडलिज्म, राइट, मतलब यू आर ब्रेकिंग आवर आइडल्स, उसके बाद में यू आर डूइंग दीस थिंग्स, राइट, आप हमारे रिलीजियस प्रॉपर्टी डैमेज कर रहे हो, राइट। उसके बाद में अनदर थिंग दैट दे हैव मेंशनड इज कि हमारा जो इंडियन डायस्पोरा है दैट इज आल्सो फेसिंग इशू, मतलब हेट क्राइम्स चल रहा है, उसके बाद में इंटिमिडेशन चल रहा है। सो दिस एंटी इंडिया इंसिडेंट इज हैपनिंग, ठीक है। तो इंडिया ने क्या बोला, पहले तो आप अपना जो है इशू जो है अपनी कंट्री में सॉल्व करिए, उसके बाद यू हैव टू कम टू अस, राइट। तो इसका मतलब क्या है, दिस बेसिकली टेल्स अस about the diplomatic relay strategy. Another keyword that you have to write down, ठीक है।
ओके, अनदर पॉइंटर, इसका मतलब ये होता है कि यू नो यू हैव टू डिफेंड योरसेल्फ, राइट? आपको सिर्फ डिफेंड नहीं करना है, राइट? यू हैव टू रिजेक्ट द क्रिटिसिज्म आल्सो। आपको सिमिलर प्रॉब्लम जो है हाईलाइट करनी है, जैसे कि इंडिया ने यूएस की, राइट? इसको बोलते हैं काउंटर क्रिटिसिज्म डिप्लोमेसी, ठीक है? अब अगर हम बात करें इसकी यूएससीआईआरएफ की, ठीक है, तो ये बेसिकली फॉर्म हुआ है अंडर इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम एक्ट, जो कि 1998 में आया था। इसका पर्पस ये है कि आपको मॉनिटर करना है जितने भी रिलीजियस फ्रीडम है, राइट, ग्लोबली जो चल रहे हैं, राइट? और अगर कहीं पर भी रिक्वायरमेंट है, समथिंग वेरी हार्श इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड, तो आप क्या करोगे? आप बेसिकली यू आर गोइंग टू रिकमेंड फ्यू मेजर्स, जैसे कि अभी जो है इंडिया के उसने स्टेक में किया है, राइट? तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि ये सिर्फ एडवाइजर बॉडी है, ठीक है? बेसिकली कोई सैंक्शंस डायरेक्टली इंपोज नहीं कर सकती है, राइट? they can only basically tell कि आपको ये चीजें करनी है, but then again if some statement is coming from that side, so this puts an hole to our image, right? So this basically raises the questions also, which can lead to later conflicts, right, which can become later conflicts, basically consequences, right? So for this reason it is very very important कि जब भी हम लोग यहाँ की claims की बात करें, we are mentioning it down, ठीक है? Now अब हम लोग बात करेंगे एग्जैक्टली सीपीसी क्या है। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द सीपीसी, तो ये है कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न, मतलब दिस इज यूज्ड फॉर द कंट्रीज जहां पे रिलीजन फ्रीडम और की वायलेशन जो है बेसिकली आर हैपनिंग इन लार्ज नंबर या फिर बहुत ज्यादा सीरियस है, ठीक है? जैसे कि चाइना हमारे पास में, ईरान है, राइट, नॉर्थ कोरिया आर देयर, राइट? सो दे कम्स अंडर दिस, राइट? So they are basically saying that you have to include India in the list as they are very serious diplomatically. ठीक है? I hope it is understood. ओके, अब इसके साथ साथ में थोड़ा पास्ट रिलेशन भी समझ लेते हैं कि एग्जैक्टली सिचुएशन क्या थी। तो इंडिया ने हमेशा से रिजेक्ट किया है जब भी ये यूएस की सीआईआरएफ रिपोर्ट आई है, राइट? उन्होंने हमेशा बोला है कि ये बहुत बायस्ड है, इनकम्प्लीट अंडरस्टैंडिंग के साथ है, एंड नॉट ओनली दैट, इंडिया हैज इवन डिनाइड एंट्री टू यूएस सीआईआरएफ ऑफिशियल्स अर्लियर आल्सो, राइट? नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट द अटैक्स ऑन टेंपल्स इन यूएस। तो अभी कुछ टाइम पे क्या चल रहा है कि बहुत सारे हिंदू टेंपल्स को ना यूएस ने बेसिकली अटैक करा है, राइट? So US reported that this grafty like anti-India slogans are happening, right? They are damaging the walls, they are damaging the idols, right? So US authorities often treat and basically threat as like hate crimes to this. Okay. Now there is one more important thing you have to understand कि global context इस चीज पे क्या है, how basically we all are seeing to this. ठीक है, global politics की अगर हम बात करें तो this is a part of larger global pattern. ठीक है, कंट्री एक दूसरे को क्रिटिसाइज करती है इस बेसिस पे, या तो ह्यूमन राइट्स के बेसिस पे या फिर रिलीजन फ्रीडम के बेसिस पे, ठीक है? सो यूएस क्रिटिसाइजेस चाइना आल्सो, यूरोप क्रिटिसाइज करता है बाकी कंट्रीज को, तो इंडिया हमेशा बेसिकली रिस्पॉन्ड करती है जब वो टारगेट हो जाती है, राइट? सो दिस इज अ पार्ट ऑफ व्हाट, दिस इज अ पार्ट ऑफ ग्लोबल पॉलिटिक्स एंड डिप्लोमेसी दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, ठीक है? तो हमें यहाँ से क्या समझ में आया? हमें समझ में आया रिलीजन फ्रीडम के बारे में। अगर इंडिया की बात करें तो दिस कम्स आर्टिकल 25 एंड 28, ठीक है? डायस्पोरा के बारे में समझ में आया, तो इंडिया इज बेसिकली लिविंग अब्रॉड, राइट? इंडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? प्रोटेक्ट देयर राइट्स आल्सो, एंड उसके साथ साथ में अगर कोई कंसर्न रेज होता है, कोई भी इश्यू रेज होता है इंटरनेशनली, तो उसको बेसिकली टैकल करना प्रॉपर्ली। ओके, दूसरा सवाल क्या है? दूसरा सवाल है हमारा सोवरेनिटी का, ठीक है? सोवरेनिटी की बात करें तो कंट्रीज राइट इज टू मैनेज इंटरनल अफेयर आल्सो, ठीक है? इंडिया का स्टैंड इस पे ये है कि दूसरी कंट्रीज हमारे यहाँ पे इंटरफेयर नहीं करेंगे, दे विल नॉट टेल कि हमें क्या करना चाहिए, ठीक है? उसके बाद में ह्यूमन राइट्स और सोवरेनिटी के बारे में बात आती है कि अगर हम कंफ्लिक्ट राइज होता है तो ग्लोबल व्यू कैसे देखा जाएगा, दैट ह्यूमन राइट्स आर यूनिवर्सल, ठीक है? इंडिया का व्यू क्या है? इंटरनल व्यू भी हमारे मैटर करते हैं, राइट? सॉफ्ट पावर और इमेज की बात करें तो हमारे पास में क्या समझ में आता है कि जो ऐसी रिपोर्ट्स हैं, जो ऐसी ऐसी जो चीजें हैं, ऐसी कमेंट्स हैं जो हमारी अफेक्ट करेंगी ग्लोबल रेपुटेशन को, राइट? फॉरेन इन्वेस्टमेंट डिप्लोमेसी को, एज वी आर मूविंग विद द इमेज आल्सो, ठीक है? I told you that we are not fighting in the borders only, ठीक है? Now this fight is against the diplomacy also. Now this fight is regarding our ideologies also, और उसके साथ साथ में we are moving with the technology also. So we have to understand कि this fight is not only regarding borders only, military के basis पर नहीं है, बहुत सारे जो है हमारे पास में we have conflict that other countries come up with, ठीक है? तो इंडिया और यूएस के रिलेशन की बात करें तो इस इश्यू के बाद भी इंडिया एंड यूएस आर स्ट्रॉन्ग पार्टनर्स, राइट? डिफेंस में बात करें, ट्रेड में बात करें, चाहे हम लोग टेक्नोलॉजी में बात करें, इंडिया पैसिफिक स्ट्रेटेजीज के बारे में बात करें, तो हर एक फील्ड में वी हैव लाइक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन विद द यूएस, ठीक है? तो इसलिए ये दिखाता है दैट पार्टनरशिप डज नॉट मीन अग्रीमेंट ऑन एवरीथिंग, ठीक है? कंफ्लिक्ट हो सकता है, इट्स एब्सोल्युटली फाइन, दोनों की अलग अलग आइडियोलॉजीज है, थोड़ा हम लोग ट्रेडिशंस में चलते हैं, दे गोज विद द यूएस वेस्टर्न कंट्रीज, ठीक है? एंड इट्स एब्सोल्युटली फाइन विद टू आइडियोलॉजीज। हमारा मेन कंसर्न दोनों का यही रहेगा कि वी हैव टू फोकस ऑन द प्रेजेंट गोल, ठीक है? और उसके साथ साथ में जो फ्यूचर हमारा आउटकम होना चाहिए, दैट शुड बी एफिशिएंट एंड इट शुड बी फुल विद डिफेंस आल्सो, और उसके साथ साथ में टेक्नोलॉजी आल्सो, ठीक है? सो दिस इज द बेसिक थिंग दैट वी हैव।
ओके, नाउ अनदर इंपॉर्टेंट न्यूज, ठीक है, दैट इज बेलम एज अ टेस्ट ऑफ न्यू मॉडल ऑफ फॉरेस्ट फाइनेंस, ठीक है, इंपॉर्टेंट न्यूज है, याद रखना। अगेन टेलिंग यू, जो भी कीवर्ड्स मैंने यहाँ पर बोर्ड पर लिखे हैं आर वेरी इंपॉर्टेंट। जो मैं कीवर्ड्स बताती हूँ कि ये कीवर्ड्स लिख लो, लिख लिया करो, क्योंकि दोज कीवर्ड्स आर नॉट ओनली फॉर दैट पर्टिकुलर न्यूज, सिर्फ उस न्यूज के लिए नहीं है, बाकी न्यूज में भी फिट होता है। सो मेक श्योर दैट यू राइटिंग ऑल द कीवर्ड्स डाउन। नाउ लेट्स मूव टू अनदर न्यूज। अब क्या बात हो रही है यहाँ पे, ओके, एग्जाम्पल के साथ में समझेंगे। तो इमेजिन करो देयर इज अ विलेज जहाँ पे देयर इज अ बिग फॉरेस्ट, राइट। तो विलेजर हैव लाइक टू चॉइसेस। पहले तो ये है कि आप बेसिकली ट्रीज को कट कर दो। अब अगर आप ट्रीज को कट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, यू विल गोइंग टू अर्न मनी क्विकली, राइट। द सेकंड थिंग दैट वी हैव इज प्रोटेक्ट फॉरेस्ट, एंड इफ यू आर प्रोटेक्टिंग फॉरेस्ट so it means what, you will not get any income, right? So what will you choose? Very obvious, right? Very quickly you will say that ma'am obviously we'll cut the trees और उसके बाद में इनकम जनरेट कर लेंगे, है ना। तो अब इस चीज को ग्लोबली सोचो, राइट। अभी जो सिचुएशन है वो यही चल रही है विद मेनी मेनी कंट्रीज, राइट। सो फॉरेस्ट लाइक वी आर टॉकिंग अबाउट अमेज़न, राइट, that is very very important for us। क्यों? क्योंकि they are absorbing carbon, they reduce climate changes, right, and apart from this they are protecting our biodiversity also। इन सारे रीजंस की वजह से Amazon is very very important for us, right। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, द प्रॉब्लम इज कमिंग दैट कंट्रीज डू नॉट गेट इनफ मनी टू प्रोटेक्ट फॉरेस्ट, राइट। तो ये हमारा बेसिक आइडिया है ऑफ दिस न्यूज व्हिच वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड विद द कंटेक्स्ट ऑफ प्रीलिम्स, और इसके साथ साथ में मेंस का क्या फ्यूचर हो सकता है दैट विल अंडरस्टैंड इट विद, ठीक है। अब इस थॉट के साथ में, इस न्यूज के साथ में लेट्स मूव टुवर्ड्स, ओके, नाउ व्हाई इज दिस इश्यू इंपॉर्टेंट, हम लोग डिस्कस क्यों कर रहे हैं इस चीज के बारे में। सो वी आर टॉकिंग अबाउट दिस COP30, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, बेलम इज बेसिकली टॉकिंग अबाउट द कंट्रीज जहाँ पे बेसिकली डिस्कशन हुआ है कि नया मॉडल ऑफ फॉरेस्ट और फाइनेंस शुड बी देयर, ठीक है। अब ये इशू क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम फॉरेस्ट की बात करें तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कार्बन एब्जॉर्ब करते हैं, राइट, रेनफॉल के लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वी हैव डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स फॉर दिस, राइट, बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट करता है, राइट। उसके साथ साथ में ट्राइबल अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइट। बट when we talk about countries they still cut forest, क्यों कट करते हैं, because they need land for farming, ठीक है, बेसिकली they need money for development, right। तो प्रॉब्लम कहाँ पे अराइज हो रही है, हमारी जो प्रॉब्लम है अबाउट द प्रोटेक्टिंग फॉरेस्ट एंड नो रेगुलर इनकम, ये बेसिक प्रॉब्लम है जो इस बेसिकली न्यूज में डिस्कस हुई है, ठीक है। अब अगर हम बात करें ओल्ड सिस्टम की और न्यू सिस्टम की, दोनों में डिफरेंस क्या है, पहले हम लोग कैसे लेकर चलते थे फॉरेस्ट को और उसके बाद अब हम कैसे लेकर चलते हैं फॉरेस्ट को, वो डिफरेंस समझेंगे हम लोग, ठीक है। ओके, अगर हम old system को लेके चले, this is the asset based model we are talking about, right। So what we are talking about in here that rich countries are giving grants, they are basically giving donations, right। प्रॉब्लम क्या थी कि irregular funding होती थी, राइट, या फिर बहुत छोटे अमाउंट में मनी दिया जाता था, लॉन्ग टर्म इंसेंटिव कुछ नहीं होते थे, इसकी वजह से क्या होता था, फॉरेस्ट दे कंटिन्यू टू डिसअपियर। अब इट्स वेरी ऑब्वियस, नाउ यू हैव टू मेंटेन फॉरेस्ट, राइट, यू नीड इनकम। अगर इनकम आपकी रेगुलर नहीं आएगी, उस अमाउंट में नहीं आएगी, तो विल इट बी एफिशिएंट, विल इट बी basically we can say is it like possible for us to manage the forest, नहीं ना, right। So this was the problem that was happening in this system, ठीक है। old system में ये crisis हमारे पास में arise हो रहे थे। now after this new system, नए system में क्या हुआ, नए system में सर ये हुआ that we decided that we have to make forest financially valuable, right। तो अब ये जब डिसाइड हुआ तो we have to make forest financially valuable, so countries are going to get regular income, ताकि वो क्या कर सके, ताकि वो लोग फॉरेस्ट को क्या कर सके, प्रोटेक्ट कर सके, ठीक है। सो दिस इज द चेंज दैट वी आर रीडिंग इन हियर, प्रॉब्लम ये है, सॉल्यूशन ये है, ठीक है। आई होप इट इज अंडरस्टूड। ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है। तो जो हमारा नया फाइनेंशियल मॉडल है, दिस नया न्यू फाइनेंशियल मॉडल, राइट, व्हाट एग्जैक्टली इट इज गोइंग टू कवर। तो मेजर प्रपोजल यहाँ पे दिया गया है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी को, ठीक है। अब ये काम कैसे करेगा, मतलब बहुत लार्ज अमाउंट में बेसिकली फंड कलेक्ट करेगा, गवर्नमेंट से लेगा, प्राइवेट मिनिस्टर से लेगा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लेगा, राइट, और इस मनी को कहाँ पे इन्वेस्ट करेगा, इन द मार्केट, ठीक है। अब उसके बाद में जो भी मार्केट से पैसा रिटर्न आएगा, बेसिकली जो भी हमारे पास में प्रॉफिट आएगा, राइट, उस प्रॉफिट को कहां पे यूज करेंगी, दे गोइंग टू पे कंट्रीज रेगुलरली फॉर प्रोटेक्टिंग फॉरेस्ट, राइट। तो ये जो हमारा फाइनेंशियल मॉडल है जिसमें हम लोग पैसे कलेक्ट करेंगे, मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे, वहां से जो प्रॉफिट आएगा वो हम कंट्रीज को देंगे, कंट्रीज आर गोइंग टू यूज दैट प्रॉफिट इन टर्म्स ऑफ व्हाट, फॉर द फॉरेस्ट, ठीक है। आई होप बेसिक समझ में आ गया होगा कि कैसे करना है। Okay, now let's understand the transformation that we are going to see कि कहाँ से होगा। So this key transformation, right, protect forest and earn money that we are talking about, right। तो forest की बात करें तो this is the natural capital, मतलब asset consider किया जाता है, right। So what we are talking about, instead of considering it like that, forest को basically you have to consider to be something very valuable, right।
अब अगर हम बात करें बेलम इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, तो बेलम की जब बात करते हैं, दिस इज लोकेटेड नियर द अमेज़न रेन फॉरेस्ट, राइट? सो इट इज लाइक अ टेस्टिंग लेबोरेटरी वी आर टॉकिंग अबाउट। अगर ये काम यहाँ पर कर जाता है तो ग्लोबली ये चीज अप्लाई हो सकती है, दिस इज व्हाई वी आर कंसर्न अबाउट इट, ठीक है? अब इसके बारे में बात हम करेंगे ग्लोबल कंटेक्स्ट के बारे में। तो पहली चीज हमारे पास में क्लाइमेट फाइनेंस क्राइसिस, ठीक है? नाउ देयर इज अ ह्यूज फंडिंग गैप, ठीक है? तो अराउंड 200 to 216 डॉलर्स बिलियन वी आर टॉकिंग अबाउट, मतलब पर साल हमें इतनी की रिक्वायरमेंट है फॉर बाय 2020 2030, ठीक है? ताकि जो हमारा करंट फंडिंग की हम बात करें दैट इज फार लेस, राइट? तो अगर हम लोग बात करें तो हमें कम से भी कम इतना जो है चाहिए ही चाहिए बाय 2030, 2030 तक मैनेज करने के लिए इस फॉरेस्ट को इतनी फंडिंग की हमारी रिक्वायरमेंट है, राइट? देन अनदर थिंग, डेवलप्ड वर्सेस डेवलपिंग कंट्रीज डिबेट, इंपॉर्टेंट पॉइंटर है, याद रखना व्हेन इट कम्स टू यूपीएससी यू हैव टू राइट दिस, ठीक है? ये पॉइंटर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? अब देखो डेवलपिंग कंट्रीज क्या बोलती है, वो बोलती है दैट वी हैव टू प्रोटेक्ट फॉरेस्ट फॉर द वर्ल्ड, राइट? तो वी नीड मनी फॉर दिस, एज इट इज सेड बाय द डेवलपिंग कंट्रीज की डेवलप्ड कंट्रीज ने जो है एनवायरमेंट को खराब किया है, बट वी बीइंग डेवलपिंग कंट्रीज, हमारा तो अभी फेज शुरू है, राइट? वी आर मूविंग टुवर्ड्स डेवलपमेंट, तो फिर भी उसके बाद भी हम लोग मैनेज कर रहे हैं क्राइसिस, तो एटलीस्ट हमें पैसा तो दो। अगर तुम्हें सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाला कांसेप्ट लेकर भी आना है तो वी नीड फंडिंग फॉर दैट, राइट? तो उसके बदले फंडिंग कौन देगा? तुम हमें फंडिंग दोगे, राइट? सो दिस इज द क्राइटेरिया दैट दीस डेवलपिंग कंट्रीज आर कमिंग अप, राइट? सो इसीलिए यहाँ पे सोल्यूशन क्या दिया गया कि आपको सेल्फ सस्टेनिंग फाइनेंशियल सिस्टम प्रोवाइड किया जाएगा, राइट? तो डेवलप कंट्रीज की बात करें, उन्होंने प्रॉमिस करा कि ठीक है हम लोग देंगे तुम्हें बट वी विल गिव इट लेस, ठीक है? नाउ दिस इज द सिचुएशन दैट वाज अराइजिंग, ठीक है? आई होप इट इज अंडरस्टूड। ओके, बेसिक समझ में आ गया होगा। ओके, नाउ आफ्टर दिस हमारे पास में अगर हिस्ट्री की बात करें, बहुत सारे हमारे पास में देयर आर लाइक डिफरेंट डिफरेंट रिफॉर्म्स, डिफरेंट डिफरेंट मेजर्स, डिफरेंट डिफरेंट स्कीम्स जो कि ग्लोबली जो है चल ही रही थी, राइट? सबसे इंपॉर्टेंट वन और जो कि बहुत फेमस भी है, दिस क्योटो प्रोटोकॉल 1997 वाला, राइट? तो हमारा पहला जो क्लाइमेट एग्रीमेंट था वो ये था, राइट? कार्बन मार्केट्स वाला इंट्रोड्यूस किया गया था, राइट? देन अदर वन वी हैव इज रेड प्लस, राइट? तो अंडर यूएनएफसीसी हमारे पास में ये चीज आई एंड कंट्रीज वर पेड टू रिड्यूस डिफोरेस्टेशन। प्रॉब्लम्स ये थी कि वही जो हमारी फंडिंग थी वो बहुत स्लो थी, मॉनिटरिंग करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था, पेमेंट जो थी वो अनसर्टेन थी, और अगर यही सारी चीजें होंगी तो वी वर लैकिंग इन दिस मेजरमेंट। उसके बाद में पेरिस एग्रीमेंट 2015 अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट था जिससे यूएस ने बेसिकली विड्रॉ कर लिया था। तो फोकस क्या था यहाँ पे था क्लाइमेट फाइनेंस का, नेशनल कमिटमेंट का, लेकिन फिर वही वापस से वही सिचुएशन जो यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही थी, फंडिंग गैप जो था दैट वाज इन लार्ज लार्ज नंबर्स, ठीक है? आई होप इट इज अंडरस्टूड। ओके, तो अगर ओवरऑल इस सिचुएशन को देखें, ओवरऑल इस बेसिकली न्यूज को हम देखें तो क्या समझ में आया हमें यहाँ से? यू नो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट टू प्रोटेक्ट फॉरेस्ट एंड टू फाइट क्लाइमेट चेंज हमें एक बहुत बेटर सिस्टम की जरूरत है, राइट? एंड व्हेन वी टॉक अबाउट दिस बेटर सिस्टम, व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट मनी हियर, राइट? सो अर्लियर कंट्रीज लाइक यूज्ड टू डिपेंड ऑन डोनेशंस, राइट, व्हिच वर वेरी लिमिटेड और बहुत रेगुलर होते थे, राइट? नाउ द आइडिया इज टू ट्रीट नेचर इज लाइक समथिंग वैल्यूएबल, राइट? हमें बेसिकली नेचर कैपिटल लेकर चलना है उसको, जहाँ पे फॉरेस्ट आर सीन एज लाइक एन एसेट, राइट? क्योंकि यहाँ पे अगर में क्लीन एयर होगी, ठीक है, दे आर बेसिकली टॉकिंग अबाउट एब्जॉर्बिंग कार्बन, जो कि हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर हम इनडायरेक्टली बात करें, ह्यूमंस आर व्हाट, दे आर रिसोर्सेज, ह्यूमंस ही नहीं रहेंगे विदाउट एनी फॉरेस्ट, तो फिर उसके बाद हम लोग कंसीडर कैसे करेंगे उसको, राइट? सो इसको एज अ एसेट लेकर चलो ताकि वो लॉन्ग टर्म में जो है हम लोग इस चीज पर और ज्यादा काम कर पाए, ठीक है? सो इंस्टेड ऑफ ओनली डोनेशन व्हाट वी हैव टू फोकस ऑन, वी हैव टू बेसिकली फोकस ऑन द मार्केट बेस्ड सिस्टम, जो कि यूज होता है बेसिकली कंपनीज में, जहाँ पे कंपनीज इन्वेस्ट करेंगी इस चीज पे ताकि जो हमारा फॉरेस्ट है वो उस चीज पर काम हो सके, ठीक है? तो दिस इज समवेयर बिल्डिंग प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट, राइट? बट इट आल्सो हैज अ प्रॉब्लम, ठीक है? प्रॉब्लम क्या है कि वी हैव टू मेंशन द रियल इंपैक्ट आल्सो, ठीक है? अनफेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी नहीं होना चाहिए, राइट? एंड देयर इज अ रिस्क ऑफ फेक एनवायरमेंट क्लेम्स आल्सो, जैसे कि ग्रीन वॉशिंग हो गया, राइट? सो फॉर इंडिया दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्यों? क्योंकि अगर हम बात करते हैं लार्ज फॉरेस्ट की, राइट, तो ये बेनिफिट कर सकता है फाइनेंशियली भी, राइट? लेकिन यहाँ पर बैलेंस करके चलना पड़ेगा इंडिया को भी, विद डेवलपमेंट आल्सो, विद कंजर्वेशन आल्सो, ताकि जो हमारा फेयर बेनिफिट्स है वो प्रॉपर्ली मेजर्स हो सके, ठीक है? तो वी हैव टू यूज डिफरेंट डिफरेंट स्कीम्स है, राइट? जैसे कि ग्रीन इंडिया मिशन हो गए, ठीक है? तो यहाँ से क्या समझ में आया कि हमें समझ में आया कि अगर हमें फॉरेस्ट को सेव करना है, ठीक है, तो पहले तो इसे कंसीडर करके चलो क्या एसेट, ठीक है? ये एसेट है जो कि लॉन्ग टर्म में इज वेरी वेरी बेनिफिशियरी फॉर अस, ठीक है? अब इस चीज को करेंगे कैसे हम लोग? इस चीज को करेंगे कि आप लोग जो है मार्केट में इन्वेस्ट करो, वहां से जो हमारे पास में मार्केट से पैसा आएगा, जो प्रॉफिट आएगा, दैट विल बी गिवन टू व्हाट? दैट विल बी गिवन टू द कंपनीज, राइट? अब कंपनीज क्या करेंगी? कंपनीज आर गोइंग टू इन्वेस्ट इट ऑन फॉरेस्ट, ठीक है? Why? Because forest here are considered as what? They are considered as asset
क्यों? क्योंकि लॉन्ग टर्म में वही चीज जो है हमारी हेल्प करने वाला है. So this is the cycle that we have understood in this news. I hope it is understood. Now, with this, we are going to today's class, and there is one question. The question is here, and you have to write the answer in the chat box. Please look at the question. Okay, write the answer in the chat box, and I'll see you tomorrow at the same timing. And for the PDF will be attached in the comment section. And this is it for today. Thank you so much for watching.